Hello class. Now in this session in operating system we show some methods which are handling a deadlock. Yes, in last session we already showed one method, that is deadlock prevention, to handle a deadlock. That means how to prevent a deadlock in our system. Yes, how to check and how to prevent. Yes, fine. So in this session we saw how to avoid the deadlock. Yes, deadlock को कैसे avoid करना है, that is deadlock avoidance. Okay, now let us see deadlock avoidance. Now we already see deadlock prevention, but deadlock prevention algorithm is reduce the throughputs. Yes, मतलब उस resource का utilization को reduce करता है. So we have one alternative, that is a deadlock avoidance. Now we can try to avoid the deadlock by making the prior knowledge about the uses of the resources. Yes, like first we find out some information that the process required the number of resources, process required how many resources, and process required how many resources in future. That means it included the resource available, the resource allocated, then the future request and the future releases by the process. So that means कि अगर डेडलॉक अवॉइड करना है तो हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि प्रोसेस को पर्टिकुलर कितने रिसोर्स अवेलेबल है, उसके पास कितने अलोकेटेड है, फ्यूचर में वो कितने रिक्वेस्ट करने वाला है और फ्यूचर में वो कितने रिलीज करेगा. यस, दैट फोर इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड in the deadlock avoidance algorithm. Now in this algorithm every process tell in advance that maximum number of resources of each type whatever they need. Yes, now based on this information we must decide if the process should wait or not, or process should wait for some resources or not, or our system is in circular wait or not. So in four condition: mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. So if we know in advance how many number of resources each process need, then we avoid the chances for circular wait. So the maximum need and maximum number of resources need for the process is required. So the simplest and most usable model for deadlock avoidance is to require and to declare a process to maximum number of resources of each type whatever they need. Now the deadlock avoidance algorithm is examined through the resource allocation graph or resource allocation state. Now in that we have to check the circular wait condition is arise in the resource allocation graph. If in the resource allocation graph there can be a circular wait condition, then it has a deadlock. It's a fixed scenario. But we check and we ensure that in the array graph there never be occur a circular wait condition. So how it will be examined? So in the resource allocation state we already defined the number of available resources, number of allocated resources and maximum demands of all the resources. Okay, now for that we have to check the system is in safe state or not. सिस्टम हमारी सेफ स्टेट में है कि नहीं, सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है. अगर हमारी सिस्टम सेफ स्टेट में है तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक नहीं है. बट इफ वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द अनसेफ स्टेट देन वी कैन अवॉइड द डेडलॉक. हम अवॉइड कैसे करना है वो हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है, सो अवॉइड कैसे करना है, हमें पहले देखना है कि पर्टिकुलर प्रोसेस के पास कितने अलोकेशन है, मतलब कितने रिसोर्स है, उसकी रिक्वायर्डनेस क्या है, वो कितने फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेगा और फ्यूचर में कितने रिसोर्स का रिलीज करेगा. फाइन, सो फ्रॉम दैट वी शो सम सेफ स्टेट. यस, हमें ये चार इंफॉर्मेशन अगर हैगी तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं. और अगर अवर सिस्टम कंसिडर टू बी इन द सेफ स्टेट तो डेडलॉक हमारे सिस्टम में अराइज नहीं होगा. बट इफ इट इज इन अनसेफ स्टेट तो हम डेडलॉक को अवॉइड नहीं कर सकते. बी केयरफुल अबाउट दिस. यस, नाउ डेडलॉक कैन नॉट बी अवॉइडेड इन द अनसेफ स्टेट. अगर आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो आप डेडलॉक को अवॉइड नहीं कर सकते. बट आपको सेफ स्टेट में सिस्टम को रखने के लिए चेक करना है कि सिस्टम में सर्कुलर वेट कंडीशन है कि नहीं. एंड सेकंड थिंग इज दैट इफ योर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, how to know
you have to check your system is in a safe sequence. आपका system safe sequence में है कि नहीं. Yes, now let us see how to check this safe state or safe sequence. Now ध्यान से ये एग्जाम्पल आप देखना कि सेफ स्टेट आप कैसे देख सकते हो. यहाँ पे सिर्फ थियोरिटिकली एक एल्गोरिथम मैंने एक्सप्लेन किया है. इट इज लाइक अ स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन अलोकेट ऑल द रिसोर्सेज रिक्वेस्ट बाय ऑल द प्रोसेसेस एंड विदाउट एंटरिंग अ डेडलॉक स्टेट. सेफ स्टेट में सिस्टम के पास सब रिसोर्सेज अलोकेट होना चाहिए विदाउट द रिक्वेस्ट. यस, एंड सेकेंड थिंग, सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस. अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है, जैसे मैंने पहले बोला, कब है, अगर सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट है, देन एंड देन ओनली योर सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट. नाउ हाउ टू चेक दिस सेफ सीक्वेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, फॉर एग्जांपल P1, P2 and Pn, if is in a safe sequence, how to check it? So for the current location state, if Pi, each Pi, that means each process and the resource that Pi can still request can be satisfied by currently available resources as well as resources held by all the processes. जितने current available है उसके साथ साथ कितने उसके पास held है, मतलब वो कितने use कर रहा है, वो check करना पड़ेगा. So for that, with J is less than I, that means कि हमें check करना है कि Pi resource needs are not immediately available, then Pi can wait until all Pj have finished. That means कि जितने भी रिसोर्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हुए वो वेट कर रहा है. कि किसकी वेट कर रहा है? कि बाकी के Pj, मतलब जो बाकी के रिसोर्सेज है उसके लिए वेट कर रहा है. यस, देन अगर जो बाकी के रिसोर्सेज फ्री हो गए, प्रोसेस ने वो रिसोर्स को फ्री कर दिया, मतलब इट विल फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, देन Pi can obtain needed resources, execute it and return the allocate resources and terminate. जितने भी उसको बाकी के जितने भी प्रोसेस के रिसोर्सेज है उसको मिल जाएंगे, उसके बाद जो ऑलरेडी वो होल्ड कर रहा है उसको वो क्या करेगा? रिलीज कर देगा, टर्मिनेट कर देगा. यस, एंड व्हेन Pi टर्मिनेट्स, जब Pi पर्टिकुलर रिसोर्स को टर्मिनेट करती है तो अपने पास जो बाकी के रिमेनिंग रिसोर्स है उसमें एक रिसोर्स बढ़ जाएगा, दैट इज Pi+1 can obtain its needed resources. Fine. So if no such sequence exists, then and then only the system is in a safe state. But the sequence is exists some like P1 को रिसोर्स मिला, P0 को रिसोर्स नहीं मिला. So if no such sequences exist, then the system is said to be in unsafe state. अगर आपको सेफ सीक्वेंस नहीं मिली तो आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में है, और अगर आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में है दैट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक इन योर सिस्टम. फाइन. नाउ वी विल चेक दिस सेफ स्टेट. ओके, नाउ इसमें कंफ्यूजन होगा तो आपका ये नेक्स्ट एग्जांपल में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. सी ओवर हियर, देयर इज सेफ, अनसेफ एंड डेडलॉक स्टेट. Yes, so this is one figure in that this is a unsafe state and this is a deadlock. अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो आपके सिस्टम में डेफिनेटली डेडलॉक होगा ही, बट अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी नहीं है. Yes, so over here, if a system is in safe state, there is no deadlock. If a system is unsafe state, so the possibility of deadlock is there. And avoidance, how to avoid? So you can ensure that a system will never enter an unsafe state. How to avoid the deadlock in your system? So हमें चेक करना है, ऑलवेज ये रिमेम्बर करना पड़ेगा कि सिस्टम हमारा अनसेफ स्टेट में ना जाए. और अनसेफ स्टेट में कब नहीं जाएगा? जब हमारे पास सेफ सीक्वेंस मिलेगी तो. दैट मीन्स इफ वी हैव अ सेफ सीक्वेंस देन आवर सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट. इफ वी हैव अ अनसेफ सीक्वेंस देन आवर सिस्टम इज इन अ डेडलॉक स्टेट. Fine. Now how to check it? Yes, how to check the system is in a safe state or system is in a unsafe state? So let us see one example. See over here, that is a process P0, P1 and P2. These three are the processes. Then that process have some maximum need. Yes, so P0 को maximum कितनी जरूरत है? 10 resources की. P1 को कितनी जरूरत है? 4 रिसोर्सेज की. P2 को कितनी जरूरत है? 9 रिसोर्सेज की. सो एट द सेम वे द करंट अलोकेशन ऑफ P0, P1 एंड P2, दैट मीन्स द नीड इज 10 एंड करंट उसको कितना मिला है?
5 मिला है, P1 को 2 मिला है और P2 को 2 मिला है। दैट मीन्स उसकी नीड 10 थी पर उसको कितने मिले 5। P1 की नीड 4 थी, उसको कितने मिले 2, पर P2 की नीड कितनी थी 9, उसको कितने मिले 12। नाउ दिस इज वन एग्जांपल एंड आवर सिस्टम हैज 12 टैब ड्राइव्स। टोटल हमारे पास कितने टैब ड्राइव्स है, टैब। ओके फाइन, कितने हैं 12, हमारे पास टोटल 12 टैब ड्राइव्स है। नाउ we have to check our system is in a safe state and we have to check our system is in a safe sequence. Now how to check? So first of all check करने के लिए मुझे क्या ढूंढना है, डिमांड, कि अगर मेरे पास नीड कितनी है 10, अगर मेरे पास 10 रिसोर्सेज की नीड है और मुझे 5 अलोकेट हुए हैं तो मेरे कितने बाकी रहे। सो हाउ विल यू चेक? तो यू कैन फाइंड इट आउट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक दैट। सो ओवर हियर आई कैन फाइंड इट आउट, आई हैव अ 10 need and 5 already allocate, so 5 resources I require. Then next is I have a 4 needs and 2 is current allocation, so required is 2. Then I have a 9 maximum need, current allocation is 2, so I required 7. So P at the current situation, P0 required 5 resources, P1 required 2 resources, P2 required 7 resources. So how can you check? Now we have total how many टैब ड्राइव्स 12, हमारे पास कितने टैब ड्राइव्स है 12 और हमारे पास यूज कितने हुए हैं वो चेक करते हैं। सो 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 प्लस 2 दैट इज 9, हाउ मेनी 9 टैब ड्राइव। सो अलोकेटेड टैब ड्राइव इज 9, हमारे पास अलोकेटेड टैब ड्राइव कितने हैं 9। नाउ हाउ मेनी रिमेनिंग टैब ड्राइव वी हैव? सो वी हैव फ्री टैब ड्राइव दैट इज 12 माइनस 9, हमारे पास कितने हैं अभी 3, हमारे पास फ्री कितने हैं 3, हमारे पास 12 टैब ड्राइव थे पर उसमें से 9 टैब ड्राइव तो इधर यूज हो चुके हैं, 9 टैब ड्राइव्स इधर यूज हो चुके हैं, तो हमारे पास टोटल कितने अभी टैब ड्राइव बाकी रहे 3। नाउ लेट अस सी ये जो 3 टैब ड्राइव है उसको 1 बाय 1 कैसे अलोकेट करना है। सो फर्स्ट डिमांड चेक करते हैं किसकी, P0 की। सो P0 रिक्वायर्ड 5, P0 को कितने जरूरत है 5 रिसोर्सेज की जरूरत है। यस पर हमारे पास कितने फ्री है ओनली 3, हमारे पास फ्री कितने हैं 3। सी ओवर हियर हमारे पास कितने फ्री है 3। सो वी रिक्वायर्ड P0 रिक्वायर्ड 5 टैब ड्राइव बट वी हैव ओनली 3 टैब ड्राइव, सो वी कांट एलोकेट दैट। यस तो P0 को छोड़ दो। नेक्स्ट चेक करते हैं P1 पे आ जाते हैं। सो P1 को रिक्वायर्ड कितने हैं 2, P1 की डिमांड कितनी है 2 की, P1 को कितने चाहिए 2। सो नाउ वी कैन अलोकेट देम, क्यों, बिकॉज वी हैव 3 टैब ड्राइव फ्री, हमारे पास टोटल कितने टैब ड्राइव फ्री है 3 है और हमें कितने चाहिए 2, तो हम ये 2 टैब ड्राइव उसको दे सकते हैं। यस हम 2 टैब ड्राइव उसको दे सकते हैं। सो वी कैन अलोकेट द टैब ड्राइव टू P1 प्रोसेस। हमें कौन से प्रोसेस को पहले अलोकेट कर दिया P1 को, कौन सी प्रोसेस को पहले अलोकेट कर दिया P1 को। दिस इज अवर फर्स्ट प्रोसेस। यस नाउ जैसे P1 को अलोकेट कर दिया, हमारे पास कितने थे 3 फ्री थे और इसने कितने फ्री करके दिए हमें, अभी हमने जो वेट कर रही थे उसको दिए, तो होल्डिंग में जो थे वो उसको फ्री कर दिया तो 2, तो टोटल हमारे पास कितने अभी हुए 5, टोटल हमारे पास अभी कितने टैब ड्राइव्स हुए 5। ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रोसेस P2। नाउ व्हाट विल बी हैपन फॉर P2? फॉर P2 वी रिक्वायर्ड 7, P2 को कितनी की जरूरत है 7 की, P2 को कितने की जरूरत है देखो यहाँ पे 7 की, बट वी हैव ओनली 5 फ्री टैब ड्राइव, हमारे पास कितने टैब ड्राइव फ्री है 5। सो वी कैन अलोकेट देम, नो, बिकॉज वी हैव ओनली 5 टैब ड्राइव्स एंड द रिक्वायर्ड इज 7, सो वी कांट अलोकेट देम, तो लीव इट, P2 को भी छोड़ दो। नाउ अगेन फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस वी विल स्टार्ट, दैट इज P0। Now we check P0. So P0 is required 5. Yes, P0 is required 5 and we have 5 tab drive free at the current situation. So we can allocate that 5 tab drive to the P0. Yes, P0 को मैंने अभी allocate कर दिया, तो सेकंड पे मैंने किसको allocate किया P1 के बाद मैंने allocate किया P0 को, किसको allocate किया P0 को, ठीक है, उसको मैंने 5 allocate कर दिया, तो अभी मेरे पास 5 और बाकी के उसके 5 जो रिलीज हो गए, तो मेरे पास कितने टोटल बाकी रहेंगे 10, कितने बाकी रहेंगे मेरे पास 10 टैब ड्राइव्स। ओके नाउ इन द करंट सिचुएशन हमारे पास 3 थे,
3 में से जब मैंने 2 यहाँ पे दे दिए और उसने अपने 2 फ्री कर दिए तो टोटल 5 रहे। 5 में से जब मैंने इसको 5 दिए तो उसके पहले के 5 उसने फ्री कर दिए तो टोटल कितने रहे, 10 रहे। Now we leave one process, that is P2. Now again we will check for the process P2. So over here we have 7 requirement. कितने requirement है, 7. So we have a 10 tab drive free, so we can allocate them. Yes. Now in P2 we can allocate the resources. So at the end मेरे पास 10 थे और इसने 2 जो ऑलरेडी यूज करके रखे थे उसने फ्री कर दिए, तो टोटल मेरे पास अभी 12 टैब ड्राइव्स हो गए। यस, सो हमारे पास जो 12 टैब ड्राइव जो था उसको हमने यूज कर लिया। फाइन। सो हाउ टू अलोकेट द प्रोसेस टू रिसोर्स। P1 पहले हमारी कितनी अलोकेट हुई, P1, जिसको हमने कितने टैब ड्राइव दिए, 2, और हमारे पास 5 हो गए। फिर हमें P2 पे आए पर हम P2 को नहीं दे पाए, P0 को दे दिया। P0 को भी अलोकेशन कंप्लीट हो गया और उसने अपने फ्री कर दिए 10 टैब ड्राइव। फिर वहां से लेके हम वापस कहाँ पे आए, P2 पे। सो P2 रिक्वायर्ड 7 एंड वी हैव अ 10 टैब ड्राइव फ्री, सो हमने P2 को भी 7 दे दिया। सो एट द एंड आवर सीक्वेंस इज लाइक दैट, P1, P0, P2, that is our safe sequence, and we get the safe sequence, then and then our system never occur a deadlock because our system is in a safe state. हमारे सिस्टम सेफ स्टेट में है वो हमें पता चल गया थ्रू दिस सेफ सीक्वेंस। सो हमारे पास अभी सारे रिसोर्सेज अलोकेट हो चुके हैं, जितने मैक्सिमम नीड्स थे वो सब मैक्सिमम नीड्स हमने फुलफिल कर दिए हैं, तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है और सेफ सीक्वेंस हमें मिल गया, तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। फाइन ऑल ऑफ यू? यस, सो दिस इज अ सेफ स्टेट सीक्वेंस। नाउ सेम वे वी सो सम अनदर एग्जांपल लाइक दैट. In that same example we will check the process P2. हम प्रोसेस P2 को चेक करते हैं। नाउ अवर प्रोसेस P2 इज लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल सी ओवर ही P2। नाउ करंट, लास्ट एग्जाम्पल में P2 के पास करंट लोकेशन 2 था, पर अभी करंट अलोकेशन कितने हुए, 3। कितने हुए करंट अलोकेशन, 3। सो वी रिक्वायर्ड नाउ 6। यस, P2 को 6 चाहिए, ये हमने कर दिया। एक टैब ड्राइव की रिक्वेस्ट ज्यादा हो गई। So what happened will the table if P2 requests one more granted tab drive? So what will be happen? Now total tab drive कितने हैं हमारे पास, 12, और total allocation कितना हुआ है, 5 plus 2 7 and plus 3 that is 10. Yes, so we have now BC tab drive 10 and free tab drive 2. अभी हमारे पास free tab drive कितने हैं, 2. Now we will check the process P0. P0 required 5 but we have only 2, so we can't allocate them. Then P1 पे आते, P1 is demand for 2. P1 is demand for 2, so we can allocate them. Yes, P1 का 4 मिल गए और हमारे पास कितने हो गए, 4 टैब ड्राइव फ्री हो गए। Yes, सिर्फ हम P1 प्रोसेस को यहाँ पे allocate कर दी जा रहे हैं, ठीक है। So we can allocate the resources to P1. Okay, now next we will check. Now the next demand is P2. P2 की next demand क्या है, P2 डिमांड इज 6 ओवर हियर, सी ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 6। कितनी डिमांड है उसकी, 6, बट वी हैव ओनली 4। यस, हमारे पास 4 है, सो वी कांट अलोकेट देम। यस, नाउ अगेन वी विल चेक फॉर द प्रोसेस P0. यस, बट प्रोसेस P0 ऑल्सो रिक्वायर्ड 5 एंड वी हैव ओनली 4 टैब ड्राइव, सो व्हाट विल बी हैपन, वी कांट अलोकेट देम, सो एट द एंड वी कांट गेट द सेफ सीक्वेंस। हमारे पास यहाँ पे कोई सेफ सीक्वेंस आया ही नहीं, एंड इफ वी डोंट हैव अ सेफ सीक्वेंस देन वी आर इन अ अनसेफ स्टेट। हम कहाँ पे है, अनसेफ स्टेट में। सिस्टम में अनसेफ स्टेट आया, दैट मीन्स द सिस्टम कंटेन अ डेडलॉक। फाइन ऑल ऑफ यू? सेफ एंड अनसेफ स्टेट समझ में आया? सेफ एंड अनसेफ स्टेट किसके अंदर है, डेडलॉक अवॉइडेंस के। डेडलॉक अवॉइड करना है तो हमें क्या चेक करना है कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं। इफ अवर सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट देन देयर इज नो डेडलॉक, बट इफ अवर सिस्टम इज अ अनसेफ स्टेट देन देयर इज अ डेडलॉक इन अवर सिस्टम। और सेफ स्टेट में हमें क्या चेक करना है, सेफ सीक्वेंस। ओके ऑल ऑफ यू? सो गेटिंग हाउ टू अवॉइड द डेडलॉक? फाइन ऑल ऑफ यू?